محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بانسواڑہ قانون ساز اسمبلی حلقے BRS پارٹی امیدوار پوچھرام سرینیواسٹی کو بانسواڑہ دہی منڈل کے JK ٹانڈو و کوناپور موضع سے وابستہ مکینوں نے مکمل حمایت کرنے کا کیا اظہار۔ نظام آباد رورل حلقے کے کمیونٹی طبقے کے سنگموں کے بھون کے لیے 16 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ نظام آباد رورل MLA کیمپ دفتر پر RTC چیئرمین رورل MLA بارجٹی گوردھن نے مختلف طبقے سے وابستہ سنگموں کے اراکین کو پروسیڈنگ کاپی کیے حوالے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی اپیل کے مطابق ضلع کے مختلف حلقوں میں ہر ایک گھر سے BJP قائدین نے کی مٹی حاصل۔ شہر میں ریاستی BJP ایگزیکٹو ممبر دھن پال سوریہ نارائن کے زیر نگرانی میں مٹی حاصل کی گئی۔ تلنگانہ دہی کہانی پر مبنی فلم تلنگانہ عوام کی تعریفیں بٹور رہی ہیں۔ آرمور کے شتریہ انٹرمیڈیٹ کالج میں مٹی کہانی پر مبنی فلم کی یونٹ کی مبارکبادی تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ مکتب الاسلامی جمیعت علماء نظام آباد کے زیر اہتمام مکاتب کے طلباء و طالبات میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و عقائد اسلامی مقابلے۔ سالانہ عرس شریف درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ بودھن کا بروز ہفتہ انعقاد۔ بروز اتوار کو چراغاں کا رہے گا اہتمام۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ انسانی ہمدردی کی بہترین مثال MSO کی نمائندگی پر نصراللہ آباد سے تعلق رکھنے والے محمد جواد الدین نے شہر نظام آباد پہنچ کر دیا اپنے خون کا عطیہ۔ شہر نظام آباد میں خاتون مریض کے علاج کے لیے او نگیٹو خون کی بے حد ضرورت پیش آئی اور شہر کے کسی بھی بلڈ بینک میں یہ بلڈ گروپ موجود نہ ہونے کے سبب مریض کے افراد خاندان نے شہر کے سرگرم تنظیم MSO کے بلڈ انچارج شاہیر احمد سے رابطہ پیدا کیا۔ MSO کی اپیل پر نصراللہ آباد کے رہنے والے نوجوان محمد جواد الدین نے اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بہترین مثال پیش کی اور شہر نظام آباد کو پہنچتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ واضح ہے کہ نصراللہ آباد شہر نظام آباد سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہے۔ اتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے ان کی اس خدمت پر MSO کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ جواد الدین نے کہا کہ وہ صرف انسانی ہمدردی کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ نوجوان اس جانب توجہ دیتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنے کا انہوں نے اظہار کیا۔
दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का उर्स शरीफ 2 सितंबर और 3 सितंबर को चरागों का एहतमाम। बोधन शहर की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स का 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता इनेकात अमल में लाया जाना है। इस ज़िमन में उर्स की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वाज़ेह है कि संदल मुबारक में मुख्तलिफ मकामात से ज़ायरीन की आमद देखी जाती है। ऐसे में तमाम महकमे के ज़िम्मेदारों व दरगाह कमेटी की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। बता दें कि 2 सितंबर को उर्स और 3 सितंबर को चरागा का एहतमाम रखा जाएगा। मकतबुल इस्लामी जमीयतुल निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम मकातिब के तलबा व तालिबात में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अक़ायद व इस्लामी मुकाबले। हर साल की तरह इस साल भी जमीयतुल ज़िले निज़ामाबाद की निगरानी में मकतबुल इस्लामी के तहत चलने वाले और दीगर मकातिब खुरानिया के तलबा व तालिबात ने ज़ाती तौर पर घरों, दीनी तालीम सेंटर और ट्यूशन में कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वाले तलबा को माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से इस्लामी बुनियादी अक़ायद और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाक़िफ़ियत पैदा करने के गैर से मुकाबले जात मुनक़िद होंगे। इस बात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने किया। नेज़ कहा कि स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को यौमियाए बाद असर और बाद मग़रिब ता इशा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लात में तजवीद के साथ नूरानी क़ायदा और नाज़िरा कुरान के अलावा हिफ्ज़ कुरान कराने का अहतमाम किया जाता है। नेज़ साल भर में इस्लामी तालीमात और अक़ायद व जनरल नॉलेज के हवाले बच्चों में शौर बेदारी के लिए मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में बच्चे हिस्सा लेकर उम्दा मुज़ाहरा करते हुए गिरा नक़दर इनामात हासिल करते हैं। साल हाल भी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस्लामी अक़ायद के सिलसिले में तलबा कराम को सवालात व जवाबात याद दिलाकर इम्तिहानात और मुकाबले कराए जाएंगे। तमाम मकातिब चलाने वाले और घरों पर दीनी व इस्लामी ट्यूशन पढ़ाने वाले उलमा व अफ़ाद से अपील की जाती है कि वो दफ्तर मकतबुल इस्लामी मस्जिद इस्लामिया से सवालात व जवाबात के पर्चे हासिल करके बच्चों को याद दिलाकर शरीक इम्तिहान कराए। इंशाअल्लाह बच्चों का बड़ा दीनी नफ़ा होगा। मुकाबलत जात की तारीख 20 सितंबर तक 24 सितंबर रहेगी। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी 9505057866, मोहम्मद इमरान शरीफ 8519999942, हाफिज़ राशिद 9700300819, मौलाना अब्रार क़ासिमी 9652345783 पर राब्ता करें। SBI में क्लर्क व प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 6000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो मुल्क का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले नौजवानों को क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की मुलाजिमतें फ़राहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मुल्क भर में 6160 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अहल उम्मीदवार 1 से 21 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। मुल्क भर में 6160 मुलाजिमतें खाली है। SC के लिए 949, ST के लिए 514, OBC के लिए 1349, इख्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात EWS के लिए 603 और गैर महफूज कोटे में 2665 मुलाजिमतें हैं। SBI ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि तेलंगाना में 125 और आंध्र प्रदेश में 390 मुलाजिमतें खाली हैं। इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों का किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे से डिग्री पास होना जरूरी है। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर या नवंबर के महीने में तहरीरी इम्तिहान ऑनलाइन लिया जाएगा। उम्मीदवारों का इंतखाब मुकामी ज़बान के टेस्ट सर्टिफिकेट्स की तस्दीक और तिब्बी मुआयने के साथ ऑनलाइन टेस्ट के बाद किया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को 1 साल के लिए तरबियत दी जाएगी। तरबियत के दौरान 15,000 रुपये माहना दिया जाएगा। कोई और अलाउंसेस दस्तियाब नहीं रहेंगे। 1 अगस्त 2023 को उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। जनरल OBC EWS ज़िमरे जात के उम्मीदवारों को 300 रुपये की फीस अदा करके दरख्वास्त देना होगी। SC ST माज़ूर उम्मीदवारों को दरख्वास्त की फीस से मुकम्मल इस्तेस्ना रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक सितंबर में 8 दिन बैंक को रहेगी तातीलात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सितंबर में 8 दिन बैंक्स को तातीलात रहेंगी। आइंदा माह के दौरान इतवार, दूसरे और चौथे हफ्ते के बमशमुल जुमला 17 छुट्टियां होंगी। ताहम ये छुट्टियां तमाम रियासतों में एकसा नहीं होंगी। हैदराबाद में बैंक इतवार दूसरे हफ्ते को बंद रहेंगे। 17, 18 और 28 सितंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों जन्माष्टमी, विनायक चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी की छुट्टियां होंगी। बैंक के बंद होने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग की खदमात दस्तियाब रहेगी। 3 सितंबर
सितंबर को इतवार, 7 सितंबर को जन्माष्टमी, 9 सितंबर को दूसरा हफ्ता, 10 सितंबर को इतवार, 17 सितंबर को इतवार, 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 23 सितंबर को चौथा हफ्ता, 24 सितंबर को इतवार और 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी होगी। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से असातिज़ा के तबादलों की मशरूत इजाज़त के बाद हुकूमत इस माह की 2 तारीख से तबादलों का अमल शुरू करेगी। तेलंगाना के महकमे तालीम ने इस सिलसिले में शेड्यूल जारी किया है। इन तबादलों में टीचर जोड़े को इजाफी पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने हतमी फैसले से मशरूत असातिज़ा के तबादले का हुक्म दिया है। इसके मुताबिक जो लोग तबादले के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें अपनी दरख्वास्तें इस माह की 3 से 5 तारीख तक ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त की कॉपियाँ DEO ऑफिस में 6-7 को जमा कराई जाए। ओहदेदारान 8 और 9 तारीख को दरख्वास्त देने वालों के नाम डिस्प्ले करेंगे। एतराज़ात 10 और 11 तारीख को वसूल किए जाएंगे। सीनियरिटी लिस्ट 12-13 को शाये की जाएंगी। एडिट का ऑप्शन 14 तारीख को दिया जाएगा। 15 तारीख को प्रिंसिपल्स के तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे और 16 को प्रिंसिपल्स की खाली जायदादों को डिस्प्ले किया जाएगा। 17, 18, 19 को इन्हें स्कूल असिस्टेंट से हेड मास्टर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। स्कूल असिस्टेंट की खाली जायदादें 20 और 21 तारीख को डिस्प्ले की जाएंगी। अगर आप 21 तारीख को वेब ऑप्शंस डालते हैं तो 22 तारीख को एडिट ऑप्शन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। स्कूल असिस्टेंट के तबादले 23 और 24 तारीख को किए जाएंगे। 24 तारीख को स्कूल असिस्टेंट की जायदादों को डिस्प्ले किया जाएगा। 26, 27 और 28 को SGT से स्कूल असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। 29, 30, 31 को SGT की खाली जायदादों को डिस्प्ले किया जाएगा। तरमीम के लिए एडिट ऑप्शन 2 अक्टूबर को दस्तयाब होंगे। SGT माहिर लिसानियात और PET के तबादले 3 अक्टूबर को किए जाएंगे। 5 से 19 अक्टूबर तक अपील का मौका दिया जाएगा। 1 सितंबर को कट ऑफ तारीख के तौर पर असातिज़ा के लिए 8 साल और प्रिंसिपलों के लिए 5 साल तवील मुद्दत के लिए लागू करने की तजवीज़ दी गई है। असातिज़ा हेड मास्टर्स की जायदादें जिन्होंने 5 या 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं, इनको असामियों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। रिटायरमेंट से पहले 3 साल से कम सर्विस वाले असातिज़ा और प्रिंसिपल्स को लाजमी ट्रांसफर से मुस्तस्ना है। रियासती सतह के ओहदेदारों ने ज़िले ओहदेदारों को तमाम किस्म की तरक्कियों के लिए सीनियरिटी लिस्टें तैयार करने की हिदायत दी है। तरमीम करने और नए सिरे से दरख्वास्त देने का मौका पहले से दरख्वास्त देने वाले असातिज़ा की दरख्वास्तों में तरमीम करने और इसके अलावा टीचर जोड़े के लिए पॉइंट्स लगाने का मौका फराहम किया गया है। लड़कियों के स्कूलों में काम करने वाले प्रिंसिपल और असातिज़ा को जिनकी उम्र 1 सितंबर तक 50 साल से कम है के लाजमी तबादले के लिए तजावीज़ भेजी है। दरपली मंडल के मुकाम पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की मुस्तकिल में फ्राहमी अमल में लाई गई। दरपली मंडल के पद्मशाली संगम में TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तकिल में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके हमरा जिले के नौजवान कायद दरपली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन भी मौजूद थे। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत मुतारफ़ किए गए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत आज मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के मुस्तहिक़ लड़कियों को अपनी स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए रकमी इमदाद 25,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया और माह बाद 1,01,16 रुपये इजाफा करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर रकम की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है और रियासत में नाफिज करदा स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और तेलंगाना हुकूमत जो भी स्कीमात शुरू करता है मुल्क की दीगर रियासतें इसकी तलखीद करने की कोशिश करती है और इसी तरह से KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से रियासत तेलंगाना में नाफिज करदा फलाही स्कीमात से तेलंगाना में मुक़ीम हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत की कामयाब हुक्मरानी से रियासत के अवाम काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने अहद की पाबंद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम के हर तबके की तरक्की के लिए इक़दाम करने के लिए कोशा है। CM KCR रियासत तेलंगाना के गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए स्कीमात का ऐलान ही नहीं करते बल्कि इन स्कीमात को रूबे अमल में लाने में खुसूसी दिलचस्पी भी लेते हैं। इन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि वो हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से बिला झिझक इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि मौजूदा अवाम
سے کہا کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کے تعلق سے فکر مند نہ رہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ KCR ریاست کی ہر ایک مستحق لڑکی کو شادی کے موقع پر کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت 1,116 روپے کا چیک دیا جاتا ہے، غریب سے غریب عوام کے لیے ایک انمول نعمت ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ، RTC چیئرمین و رورل MLA باجیریڈی گووردھن و ضلع کے نوجوان قائد دھرپلی ZPTC ممبر باجیریڈی جگن موہن کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی سے وابستہ قائدین، کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے و دیگر موجود تھے۔ اندلوئی MRO کی زیر نگرانی میں وینگل پاڑ میں انتخابی مہم کے وین کے تحت ووٹ دینے کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ اندلوئی MRO کے زیر اہتمام وینگل پاڑ میں انتخابی مہم کے وین کے ذریعے ووٹر رجسٹریشن و ووٹ دینے کے حق کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ذمہ دار عہدیداران نے کہا کہ 18 سال کی عمر کے تمام اہل نوجوان مرد و خواتین کو بطور ووٹر رجسٹر کیا جانا چاہیے۔ ووٹ دینے کا حق رکھنے والے تمام افراد کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے اور ووٹ دینا چاہیے۔ EVM کی کارکردگی نے ووٹنگ کے عمل کی وضاحت کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہمیں ووٹ کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی لالچ کا شکار ہوئے بغیر ایمانداری اور ذمہ داری کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مقامی عوام کو EVM مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست ووٹ ڈالنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ نظام آباد رورل حلقے میں مختلف کمیونٹی طبقے کے سنگموں کے بھون کے لیے RTC چیئرمین و رورل MLA باجیریڈی گووردھن نے 16 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لائی۔ TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجیریڈی گووردھن نے ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی کاوشوں کے سبب مختلف کمیونٹی طبقے سے وابستہ سنگموں کے بھون کے لیے منظور ہونے والے 16 کروڑ روپے فنڈز کی آج دیگر منڈلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقے کے سنگموں کے اراکین کو SDF پروسیڈنگ دستاویزات کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ پہلے مرحلے کے طور پر ڈیچپلی منڈل کے مقام پر واقع بردی پور دیہات میں SC مالا طبقے کے سنگم کے لیے 5 لاکھ روپے پروسیڈنگ دستاویزات حوالے کیے گئے اور ڈیچپلی منڈل کے نرسنگا پور کوٹا پیٹا دیہات میں مودیراج کمیونٹی ہال کے لیے 5 لاکھ روپے کی پروسیڈنگ دستاویزات حوالے کیے گئے۔ ڈیچپلی منڈل کے رامپور دیہات میں گنگا پترا سنگم کے لیے 5 لاکھ روپے کا پروسیڈنگ دستاویزات حوالے کیا گیا اور موپال منڈل سے تعلق رکھنے والے مودیراج کمیونٹی ہال کے لیے 3 لاکھ روپے کا پروسیڈنگ دستاویزات حوالے کیا گیا اور موپال منڈل کے بھکتا مارکنڈیا پدمشالی سنگم کے لیے 3 لاکھ روپے کے پروسیڈنگ دستاویزات حوالے کیے گئے اور اسی طرح سے نظام آباد رورل منڈل کے مبارک نگر میں واقع سائی بابا مندر کے پکوان روم کے لیے 5 لاکھ روپے پروسیڈنگ دستاویزات حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے ساتھ یکساں انصاف کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ فلاحی اسکیمات کے ثمرات تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیض یاب کیا جا رہا ہے اور آج ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کاوشوں کے سبب نظام آباد رورل حلقے میں مختلف طبقے کے سنگموں کے لیے 16 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے، جس کے تحت آج مختلف طبقے سے وابستہ سنگموں کے ممبران کو پروسیڈنگ دستاویزات کی فراہمی عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی عوامی مفادات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی اسکیمات کو پیش کیے ہیں اور حکومت کے تمام پالیسیاں صرف اور صرف عوام کے مفاد کے لیے ہی ہے۔ BRS حکومت KCR کے اقتدار میں کئی منفرد اسکیمات کو تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لاتے ہوئے ان اسکیمات کے ثمرات کو تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ BRS حکومت میں تمام طبقات کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اقدامات کا آغاز ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر عوام کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت عوام کی توقعات پر کھری اترے گی، کیونکہ عوام نے بڑی بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ کرتے ہوئے اقتدار سونپا ہے اور ان توقعات کو مکمل کرنے کے لیے حکومت تلنگانہ سرگرم عمل ہے۔ اس پروگرام میں منڈل سے متعلقہ موضوعات کے سرپنچوں کے علاوہ MPTCs، نائب سرپنچ، مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے اراکین، عوامی نمائندے، BRS پارٹی سے وابستہ قائدین، کارکنان کے علاوہ مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ موپال منڈل کے مقام پر عوامی نمائندوں نے CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور کردہ CMRF چیکوں کی مستحقین میں کی تقسیم۔ موپال منڈل کے مقام پر عوامی نمائندوں نے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم سے منظور کردہ CMRF چیکوں کی استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکمران جماعتوں نے ریاست تلنگانہ میں صحت تعمیر کو نظر انداز کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں TRS حکومت برسر اقتدار پر آنے کے بعد چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں ریاستی حکومت صحت کے شعبے کو خصوصی ترجیح دے رہی ہیں اور عوام کے مسائل کو دور کر رہی ہیں اور CM KCR کی قیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والے مختلف فلاحی اسکیمات کے تحت
तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़ याब किया जा रहा है। CM KCR ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि हंगामी हालात में खानगी दवाखाने में इलाज मुआवजा कराने के बाद अपने तमाम तिब्बी अखराजात के मसारिफ जो इन्होंने अपने तौर पर खर्च किए हों, तो इस सिलसिले में MLA कैंप ऑफिस पर वो अपने तमाम बिलों के साथ दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम इमदाद हवाले की जाएंगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस स्कीमात को तमाम रियासत के मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने इस रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते और रंग बिरंगे फूलों से मज़ीद इस चमन की माली हैसियत से इसकी आबियारी करते हुए इस गुलशन को हमेशा तरोताज़ा और पुरअमन बक़ाए बाहम देखना चाहते। चुनांचा इन्होंने तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुख्तलिफ इक़दामात रूब अमल में लाए हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत हुकूमत सेहत आमे को अव्वलीन तरजीह दे रही है, जिससे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अवाम को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इन्होंने याद दिलाया कि माजी में अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। तिब्बी खिदमात को अवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाने के लिए बस्ती दवाखाने की तामीर अमल में लाते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अशखास की मुफ्त तिब्बी इमदाद करते हुए अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में गरीब अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए रूब अमल में लाई जाने वाली CM रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सड़क हादसात और सेहत के मसाइल की वजह से निजी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम गरीबों के लिए बहुत ही कारआमद होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा गुज़िरगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రజల మీద భారం పడకుండా ఈ CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు అయితేనేమి మరియు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ ఇలాంటి వివిధ రకాలుగా అన్ని కూడా రసల్తన గారు మరియు CM KCR గారు ఇప్పించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇట్టి కార్యక్రమాలు వచ్చినటువంటి బెనిఫిషరీస్కి అయితేనేమి మా వివిధ మండలాల కార్యకర్తలందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా సర్పంచులకు, ఎంపీలకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆరోగ్యం బాగలేక హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినందుకు హాస్పిటల్లో అయిన ఖర్చు ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రశాంత్ అన్ననే కానీ మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషం। बांसवाड़ा कानून साज असम्बली हल्के BRS पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बांसवाड़ा व दही मंडल के JK तांडे व कोनापुर मौजे से वाबस्ता मकीनों की मुकम्मल हिमायत करने का किया ऐलान। बांसवाड़ा रूरल में JK तांडे के बुजुर्ग व कोनापुर मौजे के अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने बांसवाड़ा शहर के रिहाइशगाह में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। वो तांडे को ग्राम पंचायत के तौर पर क़याम अमल में लाने के अलावा तांडे में मुक़ीम मकीनों के लिए दरकार तमाम किस्म के कामों के लिए करोड़ों रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाने जाने के बायस इजहार तशक्कुर के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मुतफ़िक़ा तौर पर हिमायत का ऐलान करते हुए तमाम तांडे के मकीनों ने एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाकर इससे मुताल्लिक़ कॉपी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब ही कोनापुर में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मौजे के लिए दरकार बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस हिसार तालीमी इदारे में करस्पॉन्डेंट हरिता माराया गौड के जन्मदिन तकरीब असातिज़ा, साहिबिन व तुलबा के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ SSR डिग्री कॉलेज व जन्नेपल्ली के SSR डिस्कवरी स्कूल के अलावा माधव नगर के SSR स्कूल में करस्पॉन्डेंट हरिता माराया गौड के जन्मदिन तकरीब असातिज़ा, साहिबिन व तुलबा की मौजूदगी में शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर केक कट करते हुए जश्न मनाया गया। दीगर ने बात करते हुए कहा कि माराया गौड मस्जिद यौम सालगिरह तकरीब मनाने की ख्वाहिश की वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर के कलेक्ट्रेट के हुदूद में AITUC के ज़ेरे निगरानी में ANM की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाली हड़ताल आज 17 यौम दाखिल हुई। ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट ऑफिस के हुदूद में AITUC के ज़ेरे निगरानी में ANM की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाई गई हड़ताल आज 17वें यौम में दाखिल हो गई। इस मौके पर AITUC ज़िले जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया व यूनियन ज़िले सदर भारतमे ने मुखातिब करते हुए कहा कि 17 यौम से जारी हड़ताल को हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि देहात में मुक़ीम अवाम व हामिला ख़वातीन कई मुश्किलात का सामना करें, लिहाजा हुकूमत इनकी सेहत की हिफाजत के अलावा इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో సెకండ్ అండ్ ECINMల సమ్మె 17వ రోజుకు చేరుకుంది. అయినా ఇంతవరకు ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి చలనం కనబడట్లేదు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు బేషరతుగా రెగ్యులర్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. నోటిఫికేషన్ వెంటనే రద్దు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము.
पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की जेर निगरानी में अंबम देहात के बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। बांसवाड़ा हलके में होने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होने वाले रुद्रपुर मंडल के अंबम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता तकरीबन 100 कायदीन व कारकुनान ने बीआरएस पार्टी रियासती कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी कड़वा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत व असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर हम तमाम बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतख़ाबात में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मौज़े के बीआरएस कायदीन व कारकुनान को सख्त मेहनत करने की ताकीद की। बातज़ा मौज़े से वाबस्ता कुरुमा संगम भोई संगम की तामीर अमल में लाने के लिए ताल्लुक़ से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इल्म में लाए जाने के बायस मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करने वाले स्पीकर ने फौरी तौर पर कुरमा संगम के लिए 10 लाख रुपए और भोई संगम के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने से मौज़े के अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौज़े के बीआरएस पार्टी सदर सेक्रेटरी ए महेश, सीनियर कायद पी रामलू, आर साइलू, नरेंद्र व दीगर ने शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक सीआई चंदर राठौर के जेर निगरानी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। शहर के बस स्टैंड, कंटेश्वर, कोट चौरस्ता, इंतियार चौरस्ते के अलावा दीगर इलाकों में ट्रैफिक सीआई चंदर राठौड़ के जेर निगरानी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल क़वानीन के मुताबिक गाड़ी चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात और नंबर प्लेट का होना निहायत ज़रूरी है और अगर इंस्पेक्शन के दौरान बगैर नंबर प्लेट के सड़कों पर गाड़ियाँ घूमते हुए पकड़ी गई तो IPC की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने वाले इंस्पेक्शन के दौरान ताउन करे और इसके बाद गाड़ियों की जांच पड़ताल का अमल मुसलसल जारी रहेगा। लिहाजा मोटरसाइकिल मालिकीन यकीनी तौर पर सर पर हेलमेट लगाने के साथ साथ गाड़ी से मुताल्लिक़ा ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन की कॉपी अपने पास रखकर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने का इजहार किया। నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు మరి జిల్లా వాసులందరికీ నమస్కారాలు। గత కొన్ని రోజుల నుండి మేము చెప్తూనే ఉన్నాము, వితౌట్ నంబర్ ప్లేట్, ఇంప్రాపర్ నంబర్ ప్లేట్, మైనర్ డ్రైవింగ్, సిగ్నల్ జంప్, వితౌట్ హెల్మెట్ నడపకండి, అది ట్రాఫిక్ రూల్స్కు వ్యతిరేకంగా అవుతుంది। సో దయచేసి ఇవన్నీ పాటియండి అని చెప్పేసి ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది। रियासती बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण के जेर निगरानी में हर एक घर से मिट्टी हासिल की गई। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर मंडल शाख की जेर निगरानी में मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत डिवीजन नंबर 34 में हर एक घर से मिट्टी हासिल की गई। इस मौके पर रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी मुल्क भर से 7500 कॉलेज से हासिल की गई मिट्टी को अमृत कलाशा यात्रा के नाम से दिल्ली ले जाएंगे और इस मिट्टी के अलावा पौधों को भी ले जाएंगे, जिससे एक भारत तंजीम हिंदुस्तान की शनाख्त हासिल होगी। इस मुकद्दस मिट्टी से दिल्ली में कौमी जंगी यादगार के मुजस्समे के करीब अमृत वाटे की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर रोशन लाल बोरावट्टू, प्रवीण पवन, मल्लेश गौड़, राजेंद्र, हरीश रावत व दीगर ने शिरकत की। మనము భూమాతని, గంగామాతని అన్నిటిని మనం పూజిస్తాం। మనము ఈ నేలని ముడితేనే మనకు ఒక అద్భుతమైన వైబ్రేషన్స్, ఆనందం। మేరా మిట్టి మేరా దేశ్ అనే ఒక నినాదంతో పార్టీలకు అతీతంగా ఇంటింటి నుండి మట్టి సేకరించి మళ్ళీ మండల వారీగా ప్రతి మండలం నుంచి ఈరోజు ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమము आलमी शहर के क्षत्रिय इंटरमीडिएट कॉलेज में इंतजामिया की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए मिट्टी की कहानी पर मबनी फिल्म की यूनिट की मुबारकबादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
आजमगढ़ शहर के क्षत्रिय इंटरमीडिएट कॉलेज में कॉलेज इंतजामिया की जानिब से क़ियाम अमल में लाई गई मिट्टी की कहानी पर मबनी फिल्म की यूनिट की मुबारकबादी तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले क्षत्रिय कॉलेज के करस्पॉन्डेंट अलजापुर देविंदर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के नौजवानों ने तेलंगाना की दही कहानी पर मबनी फिल्म की फिल्मबंदी करते हुए 9 अवार्ड हासिल करना तेलंगाना के लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया और कहा कि नौजवान अपने मनपसंद शोबे का इंतखाब करके खुसूसी दिलचस्पी के तहत मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन ना होने का नौजवानों ने साबित करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल नागेश्वर, फनकार कोकिला नागराजू, मिट्टी की कहानी की फिल्म बंदी यूनिट मेम्बरान श्रीनिवास राव, रुचिता, अक्षय, तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। అజయ్ కావడం మన ఆర్మూర్ ప్రాంతానికే కాదు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చాలా చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో మన హీరో రావడం, అలాగే సంగీతకారులు విష్ణుకుమార్ గారు రావడం, సుర్బిరాల్ గ్రామం నుండి, నక్కోర నుండి శ్రీనివాస్ గారు రావడం, జగిత్యాల నుండి. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सरखे पर। बांसवाड़ा कानून साज असम्बली हल्के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को बांसवाड़ा दही मंडल के जेके तांडव व कोनापुर मौजे से वाबस्ता मकीनों ने मुकम्मल हिमायत करने का किया इजहार। निजामाबाद रूरल हल्के के कम्युनिटी तबके के संगमों के भवन के लिए 16 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन को प्रोसीडिंग कॉपी किए हवाले। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की अपील के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ हलकों में हर एक घर से बीजेपी कायदीन ने की मिट्टी हासिल। शहर में रियासती बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण के जेर निगरानी में मिट्टी हासिल की गई। तेलंगाना दही कहानी पर मबनी फिल्म तेलंगाना अवाम की तारीफें बटोर रही हैं। आरमूर के क्षत्रिय इंटरमीडिएट कॉलेज में मिट्टी की कहानी पर मबनी फिल्म की यूनिट की मुबारकबादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। मकतबुल इस्लामी जमीयतुल-उलमा निजामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम मकातिब के तुलबा व तालिबात में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अकायद इस्लामी मुकाबले। सालाना उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का बरोज़ हफ्ता इनेकाद। बरोज़ इतवार को चरागाह का रहेगा एहतिमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।